हेलो दोस्तों, मेरा नाम है समाधान काले और मैं आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूँ। सो गाइज, हम आज के वीडियो में देखने वाले हैं ग्राम स्मिथ प्रोसेस के ऊपर के एग्जांपल्स एंड रिमेनिंग पार्ट ऑफ द ग्राम स्मिथ प्रोसेस एंड ऑर्थोनॉर्मल बेसिस गाइड। सो गाइज, वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हो या फिर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज गाइज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा ताकि आने वाले सब लेटेस्ट वीडियोस की अपडेट आपको मिलती रहेगी गाइज। एंड प्लीज लाइक माय वीडियो गाइज एंड शेयर इट आल्सो। सो लेट अस स्टार्ट द वीडियो गाइज। सो पहले हम डेफिनेशन लेंगे। सो व्हाट इज द डेफिनेशन? इट्स द डेफिनेशन ऑफ orthogonal transformation guys. Okay, so let us see. Let this capital V be a vector space. Okay, we have given capital V is vector space with an inner product uv. Okay, V is vector spaces and this vector V, sorry, this vector space V is defined with an inner product uv, and this a linear transformation T. Okay, T is a linear transformation and this T belongs to the L of VV. That means set of all linear transformations from the vector space V to V is called orthogonal transformation. That means guys, this round T is called orthogonal transformation. Okay, when this vector space V with an inner product uv, okay, provided that t preserves length. That means when we say that this capital T belongs to the L of VV is orthogonal transformation. When it is orthogonal transformation guys, when it is orthogonal transformation, if this norm of T of u is equal to norm of u. Yes, norm of T of u is equal to norm of u for all u belongs to the capital T. ये कैसा कब रहेगा? जब is t की norm when it is applied to the some vector u, that norm is equal to u vectors norm, u vector के norm के बराबर होगी। अगर ये दोनों इक्वल है तब हम कह सकते हैं कि ये t जो है इट इज ऑर्थोगोनल ट्रांसफॉर्मेशन। ओके, सो दिस इज द डेफिनेशन। नेक्स्ट इज द थ्योरम। The following statements concerning linear transformation T belongs to the L of VV, where capital V is a finite dimensional and are equivalent. That means we have to show guys, here are the four statements. We have to show these four statements are equivalent when this linear transformation T belongs to the L of VV and the vector space V is a finite dimensional vector space guys. So what is the first condition? T is an orthogonal transformation. And then inner product of Tu with Tv is equal to inner product Uv for all u comma v belongs to the capital V. Okay. Then third condition, for some orthonormal basis, for some orthonormal basis u1 u2 un, that means we have a orthonormal basis u1 u2 un and ये ऑर्थोनॉर्मल बेसिस है किसका? वेक्टर स्पेस V का है। किसका है? वेक्टर स्पेस V का है। देन द वेक्टर T of u1, T of u2 up to T of un. That means ये u1, u2, un ये जो ऑर्थोनॉर्मल बेसिस है, इस ऑर्थोनॉर्मल बेसिस के हर एक एलिमेंट के ऊपर हमने क्या अप्लाई किया गई? लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई किया T। ओके, एंड उसका सेट इज आल्सो फॉर्म एंड ऑर्थोनॉर्मल सेट। ओके, अगर कोई ऑर्थोनॉर्मल बेसिस है आपके पास एलिमेंट्स का, उसके ऊपर आप अगर लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई करते हो तो आने वाला जो भी सेट रहेगा, सॉरी, जो भी बेसिस एलिमेंट रहेगा और जो भी सेट रहेगा, दैट इज अगेन ऑर्थोनॉर्मल सेट रहेगा। यस, सो दिस इज द थर्ड स्टेटमेंट। एंड द फोर्थ स्टेटमेंट इज गाइस, द मैट्रिक्स कैपिटल ए of a linear transformation T with respect to an orthonormal basis satisfies the condition. That means if we find the matrix of a linear transformation T with respect to the ऑर्थोनॉर्मल बेसिस, जो भी बेसिस होगा उस रिस्पेक्ट से हमने क्या फाइंड किया? मैट्रिक्स ए फाइंड किया एंड दैट मैट्रिक्स ए विल सेटिस्फाई द कंडीशन। कौन सी कंडीशन सेटिस्फाई करेगा? ए ट्रांसपोज इनटू ए इज इक्वल टू आई गाइस। ओके, जनरली हम ए ट्रांसपोज ऐसा लिखते थे, ओके, बट इन अवर सिलेबस ए ट्रांसपोज इज रिटन एज इन दिस वे। ओके, सो ए ट्रांसपोज इनटू ए इज इक्वल टू आई, दैट मींस आइडेंटिटी मैट्रिक्स हमें मिलेगा where this A transformation is matrix obtained from
कैपिटल ए ट्रांसफॉर्मेशन कहाँ से ऑब्टेन होगा, कैपिटल ए से। कैसे ऑब्टेन होगा, बाय इंटरचेंजिंग रोज एंड कॉलम्स, ओके, एंड दिस इज नोन एज द ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स, ऑल ऑफ वी नो. So let us see the proof. One implies two. Okay. So first statement implies two. The second statement means क्या guys? First is the orthogonal transformation. Orthogonal transformation means what? This one. Norm of T of U is equal to norm of U for all U belongs to capital U. So capital V. आपको क्या दिखाना है? Inner product of T of U and T of V is equal to UV. Okay. So this implies, इसका मतलब क्या हुआ, नॉर्म ऑफ टी ऑफ यू का मतलब क्या हुआ, इनर प्रोडक्ट ऑफ टी ऑफ यू कॉमा टी ऑफ यू, एंड दैट इज इक्वल टू नॉर्म ऑफ यू का मतलब क्या हुआ, इनर प्रोडक्ट यू यू फॉर ऑल वेक्टर्स यू गाइस. ओके. देन अब हम क्या करेंगे, रिप्लेस करेंगे यू को, रिप्लेस करेंगे बाय यू प्लस बी से. यू को किससे रिप्लेस करेंगे गाइस, यू प्लस बी से रिप्लेस करेंगे इन अबोव रिलेशन वी गेट. तो देखो यहाँ पर क्या है, टी ऑफ यू, तो इधर क्या रहेगा, टी ऑफ यू प्लस बी. इधर क्या है, टी ऑफ यू, इधर भी क्या रहेगा, टी ऑफ यू प्लस बी. सो इनर प्रोडक्ट टी ऑफ यू प्लस बी इज इक्वल टू इनर प्रोडक्ट यू प्लस बी, यू प्लस बी. यू को यू प्लस बी से रिप्लेस किया. देन नाउ एक्सपांड दिस इनर प्रोडक्ट above relation using bilinear and symmetric properties of the inner product. So हमें पता है अगर ये ऐसा रहेगा, दो फंक्शंस लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन टी अप्लाई होगा दो फंक्शंस पर, तो क्या होगा, सेपरेट होगा, दैट इज द टी ऑफ यू प्लस टी ऑफ वी. ओके. देन इट इज अगेन, दिस इज नथिंग बट टी ऑफ यू प्लस टी ऑफ ई, दैट इज इक्वल टू यू प्लस वी एंड यू प्लस वी. अब क्या होगा गाइस, ये जो टी ऑफ यू है इसके साथ ये इनर प्रोडक्ट आएगा, फिर ये टी ऑफ वी के साथ ये वाला इनर प्रोडक्ट आएगा. ओके. ये देखो पहले में क्या लिखा, इनर प्रोडक्ट ऑफ टी ऑफ यू विथ टी ऑफ यू प्लस टी ऑफ वी प्लस इनर प्रोडक्ट ऑफ टी ऑफ वी विथ टी ऑफ यू प्लस टी ऑफ वी गाइस. ओके. तो ये इनर प्रोडक्ट की बाइलिनियरिटी प्रॉपर्टीज है. सो इधर भी सेम होगा, इसका इनर प्रोडक्ट u with u plus v and inner product of v with u plus v. Okay, plus. So this is inner product of u with u plus v plus inner product of v with u plus v guys. अब नेक्स्ट क्या होगा, ये जो है इसके साथ जाएगा, फिर ये इसके साथ जाएगा और बीच में प्लस साइन आएगा, दैट मीन्स इनर प्रोडक्ट ऑफ टी ऑफ यू प्लस इनर प्रोडक्ट ऑफ टी ऑफ यू टी ऑफ वी. ओके. सेम थिंग इधर भी होगी. ओके. तो सेम थिंग होगी, मीन्स इनर प्रोडक्ट ऑफ टी ऑफ वी विथ टी ऑफ यू, टी ऑफ वी विथ टी ऑफ यू. ओके. प्लस इनर प्रोडक्ट ऑफ टी ऑफ वी विथ टी ऑफ वी, दिस वन, टी ऑफ वी विथ टी ऑफ वी. राइट साइड में क्या होगा, इनर प्रोडक्ट ऑफ यू विथ यू प्लस इनर प्रोडक्ट ऑफ यू विथ वी. ओके. सो ये टर्म हो गई. अब नेक्स्ट टर्म क्या है, इनर प्रोडक्ट ऑफ v विथ u प्लस v, इसका क्या होगा, इनर प्रोडक्ट ऑफ v विथ u, so this is v with u, and then inner product of v with v, so this is v with v. Okay, so this is t of u as it is plus. अब देखो ये t of u t of v and t of v t of u by using inner product of u v is equal to inner product of vu property, ये दोनों सेम है. so इसको क्या बोलूंगा मैं, 2 times t of u t of v in the inner product plus t of v as it is रहेगा. सेम थिंग राइट साइड में क्या होगा, u इनर प्रोडक्ट एज इट इज, ये u v एंड vu सेम है, तो इसलिए मैं 2 times इनर प्रोडक्ट ऑफ u v लिख रहा हूँ एंड इनर प्रोडक्ट v v एज इट इज रहेगा. ओके. अब देखो, सिंस इनर प्रोडक्ट ऑफ t of u इज इक्वल टू u. ओके, ऐसे होता है. यस, इनर प्रोडक्ट ऑफ t of u इज इक्वल टू u. देखो यहाँ से, यस, एंड सेम थिंग अगर हम वी पे अप्लाई करेंगे तो वही मिलेगा. तो दैट इज इनर प्रोडक्ट ऑफ टी ऑफ वी क्या आएगा, वी आएगा. so therefore above equation becomes, इसमें क्या होगा, this is inner product u plus 2 times inner product t of v plus inner product v किसकी वैल्यू, t of v that is equal to
ये इनर प्रोडक्ट एज इट इज रहेगा, इनर प्रोडक्ट यू यू प्लस 2 टाइम्स इनर प्रोडक्ट यू वी प्लस इनर प्रोडक्ट वी वी। अब देखो क्या कैंसिल होगा, ये वाली टर्म कैंसिल हो जाएगी, तो रिमेनिंग क्या रहेगा, ये 2 एंड 2 भी कैंसिल होगा। ओके, so what is remaining, inner product of T of U T of V is equal to inner product of UV for all U belongs to capital V, and ये क्या है guys, आपका सेकंड स्टेटमेंट है। ओके, सब सेकंड स्टेटमेंट इम्प्लाइज थर्ड स्टेटमेंट, सेकंड को एज्यूम करना है, उससे थर्ड प्रूव करेंगे। तो देखो, let U1 U2 UN be an orthonormal basis of capital V, ये क्या है, ऑर्थोनॉर्मल बेसिस है। देन ऑर्थोनॉर्मल बेसिस की डेफिनेशन क्या है गाइस, हमें पता है इनर प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर एनी वेक्टर विद इटसेल्फ क्या आता है, 1 आता है, एंड इनर प्रोडक्ट ऑफ एनी वेक्टर विद अनदर वेक्टर वो क्या आना चाहिए, 0, फॉर दिस I इज नॉट इक्वल टू J गाइस। ओके, सो दिस इज द ऑर्थोनॉर्मल बेसिस वेक्टर कंडीशन। So from statement 2 we have, that means statement 2 हमें क्या कहता है, that is inner product of T of ui ये क्या होगा, 1 होगा, and inner product of T of uj ये क्या होगा, 0 होगा। yes, स्टेटमेंट 2 क्या कह रहा है, देखो this one T of v is equal to uv। yes, so from that statement 2 we get this one। अब नेक्स्ट में क्या होगा देखो, and this set T of u1 T of u2 up to T of un is an orthonormal set। ये कौन सा सेट हो गया गाइस, ऑर्थोनॉर्मल सेट हो गया। हमने 2 को अज्यूम किया, उससे 3 प्रूव हो गया। अभी नाउ अब 3 को एज्यूम करेंगे और 3 से 1 प्रूव करेंगे, और लास्ट में क्या प्रूव करेंगे, 3 एंड 4 इक्विवेलेंट है या नहीं वो प्रूव करेंगे, इससे थ्योरम प्रूव हो जाएगा। ओके, तो कोई बच्चों का ऐसा डाउट होगा कि सर 3 इम्प्लाइज 4 रहना चाहिए और फिर 4 इम्प्लाइज 1 रहना चाहिए, वैसा भी कर सकते, लेकिन हम 3 इम्प्लाइज 1 एंड 3 एंड 4 को इक्विवेलेंट दिखाएंगे। ओके, तो 3 स्टेटमेंट implies 1 statement। So suppose that for some orthonormal basis u1, u2, un of capital V, the image vectors, okay, उसके image vectors means linear transformation apply करेंगे, T of u1, T of u2 up to T of un forms an orthonormal set। Okay, so this is our statement 3। अब क्या करना है, हमें assume करना है वेक्टर V। So let V is a vector with this linear combination xi1 un plus u1 plus up to xi n un be an arbitrary vector in capital V, then norm of V bracket square, इसकी नॉर्म का स्क्वायर क्या होता है, नॉर्म क्या होती है, स्क्वायर रूट ऑफ इनर प्रोडक्ट होता है ना, सो स्क्वायर करेंगे तो स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा, दैट इज इनर प्रोडक्ट ऑफ वी वी, दैट इज इक्वल टू इनर प्रोडक्ट ऑफ xi1 un, sorry xi1 u1 to xi n un and with xi1 u1 plus xi n un। सो इस इन दोनों का अगर इनर प्रोडक्ट लेंगे, सो नेक्स्ट टर्म में क्या होगा, ये xi1 u1 with all these term, okay, then xi2 u2 with all these term and xi n un with all these term। ओके, उसको रिड्यूस 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 अगर करते जाएंगे तो आपको क्या मिलेगा, ओनली xi1 प्लस xi2 प्लस xi3, सॉरी xi1 स्क्वायर प्लस xi2 स्क्वायर प्लस xi3 स्क्वायर अप टू सो ऑन xi n स्क्वायर, ये मिलेगा। तो इसकी समेशन अगर की तो मैं कैसे लिख सकता हूँ, समेशन ऑफ xi स्क्वायर। ओके, नाउ सिंस u1 u2 एंड un is an orthonormal set, ये जो सेट है वो कौन सा सेट है, ऑर्थोनॉर्मल सेट है। तो सिमिलरली वी हैव, अगर हम इस वेक्टर v पे लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन t अप्लाई करें एंड उसकी नॉर्म निकाले तो क्या मिलेगा, तो दैट इज नथिंग बट नॉर्म ऑफ t ऑफ v, ओके, इनर प्रोडक्ट, दैट इज इक्वल टू, अब क्या करेंगे हम, xi I तो एज इट इज रहेगा, इस वेक्टर u1 u2 एंड u3 पे क्या अप्लाई कर देंगे, t अप्लाई कर देंगे, so that is nothing but guys, this vector v is nothing but xi I t of ui। Okay, vector v is nothing but xi I ui, so that's why we apply the linear transformation t on the vectors ui,
So summation I runs from 1 to n xi I t of ui. Okay, and summation xi I t of ui itself, उसका लीनियर इनर प्रोडक्ट लेंगे. सो सिमिलरली ये भी क्या हो जाएगा गाइस, ये टी ऑफ यू आई जो है वो निकल जाएगा और आपको क्या मिलेगा, ओनली समेशन ऑफ xi I स्क्वायर मिलेगा. ओके, सो दिस इंप्लाइज नॉर्म ऑफ टी ऑफ वी ब्रैकेट स्क्वायर इज इक्वल टू समेशन आई रन फ्रॉम 1 टू n xi I स्क्वायर मिलेगा. ओके, देन हेंस स्टेटमेंट 1 इज प्रूव्ड. स्टेटमेंट 1 का यहाँ पर प्रूव हो गया. Now, and we have shown that the equivalence of first three statements. अब first three statement का equivalence हो गया. अब हमें क्या दिखाना है? Now we prove the 3 and 4 statements are equivalent. Okay, 3 and 4 statements are equivalent. So suppose करो 3 statement को, third statement को. So क्या है third statement? Third statement holds and let u1 u2 un be an orthonormal basis for v. Third statement hold हो रही है एंड हमने क्या सपोज किया गाइस, u1 टू un ये क्या है, ऑर्थोनॉर्मल बेसिस है वेक्टर स्पेस v का. तो लेट t of ui is equal to summation of j runs from 1 to n alpha ji into uj, अल्फा ji into uj. ऐसा ui पे अगर हम लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई करेंगे तो हमें मिलता है दैट इज अल्फा ji. It's the scalar guys. Okay, then since t of u1 t of u2 up to t of un is an orthonormal set, ये कौन सा सेट है, ऑर्थोनॉर्मल सेट है, देन वी हैव, हमें क्या मिलेगा, इनर प्रोडक्ट ऑफ टी ऑफ ui इज इक्वल टू सेम थिंग समेशन j runs from 1 to n इनर प्रोडक्ट ऑफ and alpha ji uj with summation j runs from 1 to n alpha ji uj. सो इसका अगर इनर प्रोडक्ट करेंगे तो यूजे यूजे कैंसिल हो जाएगा लास्ट तक एंड हमें क्या मिलेगा, ओनली समेशन ऑफ अल्फा जे आई स्क्वायर जे रन फ्रॉम 1 टू n. सो दिस इंप्लाइज टी ऑफ यू आई इनर प्रोडक्ट इज इक्वल टू 1. सो क्यों 1 रहेगा गाइस, बिकॉज वी अज्यूम समवेयर एल्स दिस समेशन इज इक्वल टू 1. दिस समेशन इज इक्वल टू 1. Somewhere we have assumed it, and that's why I am taking as this summation is 1 guys. Okay, this summation is 1. That means the inner product of t of ui is equal to 1. So this is the first condition of orthonormal set guys. Okay, that means if we take any vector inner product with itself, we will get the 1, and that is the orthonormal sets, sorry, orthonormal basis vectors first condition. Okay, and if I is not equal to j, अगर ये I equal to j नहीं है तो हमें क्या मिलेगा, देखो, तो t of ui t of uj का inner product is equal to the summation k runs from 1 to n alpha ki uk. Okay, and this inner product with summation k runs from 1 to n alpha kj uk. Okay, अल्फा के आई एंड अल्फा के जे. सो नेक्स्ट टर्म में हमें क्या मिलेगा, समेशन ऑफ अल्फा के आई अल्फा के जे ही रहेगा, दैट इज ओनली स्केलर, वेक्टर निकल जाएंगे, के रन्स फ्रॉम 1 to n एंड दिस देयरफॉर टी ऑफ यू आई इनर प्रोडक्ट ऑफ टी ऑफ यू आई विथ टी ऑफ यू जे इज इक्वल टू 0. ये क्या हो जाएगा गाइस, 0. एंड दिस इज द सेकेंड कंडीशन ऑफ, किसकी सेकेंड कंडीशन है, ऑर्थोनॉर्मल सेट की. ओके, ऑर्थोनॉर्मल सेट के एलिमेंट्स की. क्योंकि गाइज ये 1 एंड 0 क्यों लिया, क्योंकि इट इज एन ऑर्थोनॉर्मल सेट ना, दिस टी ऑफ u1 u2 अप टू un ये किसका सेट है, ऑर्थोनॉर्मल एलिमेंट्स का सेट है, ऑर्थोनॉर्मल बेसिस एलिमेंट का सेट है. अगर ये सब ऑर्थोनॉर्मल है तो इसका इनर प्रोडक्ट क्या आएगा गाइज, विथ इटसेल्फ 1 ही आएगा. दैट मीन्स ये अल्फा जे आई स्क्वायर की सब समीशन है. दैट मीन्स इसका मतलब क्या हुआ, अल्फा 1 1 प्लस अल्फा 1 2 प्लस अल्फा 1 3 अल्फा 2 1 अल्फा 2 2 अल्फा 3 3 एंड सो ऑन. इन सब की वैल्यूज क्या होगी, 1 होगी. यस, व्हेन दिस j इक्वल टू i, दैट मीन्स अल्फा 1 1 अल्फा 2 2 अल्फा 3 3 अल्फा nn, इसकी वैल्यू क्या होगी, 1. एंड अगर i की वैल्यू j नहीं है, नॉट इक्वल टू j, तो ये क्या होगा, 0 होगा.
ये कहाँ से लिया? बिकॉज इट इज ए ऑर्थोनॉर्मल सेट्स इलेमेंट. ओके, देन इक्वेशंस 1 एंड 2 इम्प्लाई दैट. इक्वेशन 1 एंड 2 क्या इम्प्लाई करते हैं हमें? ए ट्रांसपोज इंटू ए इज इक्वल टू द आइडेंटिटी मैट्रिक्स. ये ऐसा क्यों? देखो, सिंस ith entry of A transpose is alpha की I. Okay, ith entry, ith entry क्या है? ith entry that is 1 है. Okay, that means the diagonal elements of the matrix guys. ith entry alpha ij alpha की I ऐसा ले रहे हैं ना हम. So ith entry 1 है, तो क्या है वो? डायगोनल एलिमेंट से. एंड ikth एंट्री ऑफ ए ट्रांसपोज इज कौन सी है? अल्फा की आई. अल्फा की आई को हम क्या बोल रही है गाइस? जीरो बोल रही है ना. सो ये क्या हो गई? अनदर एंट्रीज. ओके, अनदर एंट्रीज एक्सेप्ट फ्रॉम diagonal one. That means all elements are zero except from diagonal. That's the identity matrix. So A transpose into A is equal to identity. ये किसका हो गया? A ट्रांसपोज का एलिमेंट हो गया. सिमिलरली ये अल्फा के जे किसका हो गया? A का एलिमेंट हो गया. दोनों का अगर मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो हमें क्या मिलेगा? जीरो मिलेगा. यस. सो कॉन्वर्सली A transpose into A is equal to the identity matrix implies that. ये इम्प्लाई करता है. क्या इम्प्लाई करता है? द इक्वेशंस अबोव आर सेटिस्फाइड. मींस these equation 1 and 2 are satisfied, and hence T of u1, T of u2 up to T of un is an orthonormal set, guys. Okay, so hence the statement 4 and 1 are equivalent. So that's why we have through the equivalence relation from 1 to 3. Okay, because this fourth statement is equivalent to 1. 4 and 1 ये जो statements है दोनों क्या है? सेम. Okay, next definition guys. A matrix capital A belongs to Mn of R is called an orthonormal matrix. Okay, sorry, orthogonal matrix. ये orthogonal matrix कब कहेंगे? If this condition is satisfied. A transpose into A is equal to the identity matrix. So what is the meaning of Mn of R guys? It's the ring also, and it's not a field because multiplication is not possible है ना. It's not a commutative ring. So Mn of R, Mn of R means the matrices of n by n order with real entry. That is Mn of R. So then capital A is simply the matrix of an orthogonal transformation. ये क्या है? Matrix of orthogonal transformation with respect to the orthonormal basis of vector space V. Okay, so matrix A क्या है guys? It is a matrix of orthogonal transformation and किसके रिस्पेक्ट में है? वेक्टर स्पेस V के ऑर्थोनॉर्मल बेसिस के रिस्पेक्ट में. ओके, सो दिस इज द डेफिनेशन. सो नेक्स्ट डेफिनेशन, टू वेक्टर स्पेसेस V and W. दो वेक्टर स्पेसेस है V and W विद एन इनर प्रोडक्ट V1 and V2. ये किसका हो गया इनर प्रोडक्ट? वेक्टर स्पेस V का. एंड W1 and W2 ये किसका इनर प्रोडक्ट है? वेक्टर स्पेस W का. रिस्पेक्टिवली आर सेट टू बी आइसोमेट्रिक. मींस ये वेक्टर स्पेसेस जो है V and W इसको आइसोमेट्रिक कब कहेंगे? इफ देयर एग्जिस्ट एंड वन टू वन लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन. अगर उधर एग्जिस्ट हो रहा है, क्या एग्जिस्ट होना चाहिए? वन टू वन लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन कैपिटल T of vector space V onto W such that this condition inner product of T of V1 T of V2 is equal to inner product of V1 V2. ओके, ये दोनों वेक्टर स्पेसेस को V एंड W को हम आइसोमेट्रिक कब कहेंगे? जबकि उधर क्या एग्जिस्ट होना चाहिए? लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन होना एग्जिस्ट होना चाहिए. कहाँ से कहाँ तक? V2 W से V से लेकर W तक. एंड उसमें कंडीशन क्या है? inner product of T of V1 T of V2 is equal to the inner product of V1 and V2 for all V1 V2 belongs to the vector space V guys. एंड सच लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, अगर ऐसा ही लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन T एग्जिस्ट हो रहा है तो उसको हम क्या कहेंगे? आइसोमेट्री कहेंगे. क्या कहेंगे? आइसोमेट्री. सो दिस इज द थिंग गाइस. नाउ हम एग्जांपल देखेंगे ऑन ग्राम स्मिथ प्रोसेस. ओके,
So ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स है गाइज। आप मैं इधर एक वन एग्जांपल सॉल्व करके दिखाता हूँ। रिमेनिंग एक्सरसाइज के जो भी एग्जांपल्स है आपको सॉल्व करने हैं, बहुत इजी है। अगर आपको सॉल्व करने नहीं आते हैं तो SYBSC का रेफरेंस लीजिएगा, लीनियर अलजेब्रा का, उधर चैप्टर नंबर सेकेंड या थर्ड था आई थिंक, इनर प्रोडक्ट्स, उसको थोड़ा रिवाइज कीजिएगा, है ना, आपको क्लिक हो जाएगा। So let us take the example. Find the orthonormal basis using the Gram-Schmidt process, or otherwise for the subspaces of R4 generated by the following sets of vectors. So हम otherwise के इससे नहीं लेंगे, हम किससे लेंगे, ग्राम-श्मिट प्रोसेस से ही ऑर्थोनॉर्मल बेसिस फाइंड करेंगे। ओके, so it is understand that the usual inner product in R4 is in use. So हमें क्या करना है, जो यूजुअल इनर प्रोडक्ट होता है R4 में वो लेना है। तो कैसे, इनर प्रोडक्ट ऑफ R4 में वेक्टर कैसे होगा, अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा 3 अल्फा 4, फर्स्ट यू वेक्टर, वी वेक्टर कैसे होगा, बीटा 1 बीटा 2 बीटा 3 बीटा 4, इनका इनर प्रोडक्ट क्या होगा, समेशन आई रेंज फ्रॉम 1 to 4 अल्फा आई इंटू बीटा आई। ओके, सो आपको तीन एग्जांपल दिए A B एंड C, उसमें से मैंने A सॉल्व किया है, B एंड C आपको करना है सेम प्रोसेस से। ओके, सो गाइस इधर u वेक्टर दिया है, ओके, इसको u बोल दीजिए, इसको v बोल दीजिए। u वेक्टर है 1 1 1 0 एंड v वेक्टर है -1 1 2 1। ओके, ये दोनों वेक्टर है। बाय यूजिंग दिस वेक्टर आपको क्या फाइंड करना है, ऑर्थोनॉर्मल बेसिस। ओके, तो देखो कैसे फाइंड करेंगे, बाय ग्राम-श्मिट प्रोसेस। अब हमने प्रोसेस वगैरह कुछ नहीं देखी है, मैंने ये सिंपली SYBSC की प्रोसेस यूज की है। ओके, तो स्टेप 1 में हम कंसिडर करते हैं गाइज v1 इज इक्वल टू u1। दैट मीन्स हमारा जो वेक्टर होता है हमें क्या फाइंड करना है, ऑर्थोनॉर्मल बेसिस फाइंड करना है ना। सो ये जो v1 v2 v3 जो है ये ऑर्थोगोनल बेसिस होते हैं। और जब हम v1 को v2 को v3 को जितने भी होंगे उसको क्या करेंगे, नॉर्मलाइज करेंगे, मीन्स उसकी नॉर्म से अगर डिवाइड करेंगे तो हमें क्या मिलता है, ऑर्थोनॉर्मल बेसिस मिलता है। Okay, that's why I am finding first the orthogonal bases, and then I will divide that orthogonal basis by their norms. I will get the orthonormal basis. So firstly I will assume, first जो वेक्टर होता है ऑर्थोगोनल बेसिस, वो क्या करना है, जो भी वेक्टर आपको दिया है फर्स्ट वेक्टर उसको एज्यूम कर देता है। ओके, सो मैंने एज्यूम कर लिया v1 इज इक्वल टू u1 एंड दैट इज इक्वल टू 1 1 1 0, ये मैंने एज्यूम कर लिया। ओके, अब इसकी नॉर्म फाइंड करूंगा मैं। सो नॉर्म ऑफ v1 इज इक्वल टू, दैट इज द नॉर्म ऑफ u1 एंड दैट इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर प्लस 0 स्क्वायर एंड दैट इज इक्वल टू √3। ये क्या होता है, इनर प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर u1 विथ u1 एंड दैट इज वी नो, हमें पता है क्या है, दोनों का क्या लेना है, मल्टीप्लीकेशन लेना है, 1 into 1 1 into 1 1 into 1 0 into 0। ओके, सो ये v1 हो गया। अब स्टेप सेकंड में v2 की वैल्यू लेंगे। सो v2 की वैल्यू स्टेप सेकंड में कैसे लेते हैं गाइस, दैट इज u2 माइनस, ओके, u2 माइनस this inner product of u2 with v1 into v1 upon norm of v1 square, upon norm of v1 square। so in general ऐसा फॉर्मूला है गाइस, कैसा फॉर्मूला है, this ui, okay, ui minus inner product of ui, okay, inner product of ui with vi minus 1, okay, with vi minus 1 into vi minus 1 into vi minus 1, once again this is I minus 1, and upon norm of vi minus 1 bracket square। okay, norm of vi minus 1 ब्रैकेट स्क्वायर, इसको लिख लेना गाइस। ओके, इसको लिख लेना, और ये किसके बराबर होता है, वी आई के बराबर होता है। यस, वी आई के बराबर, वी आई इज इक्वल टू दिस वन। सो अगर आपको v2 फाइंड करना है तो ये फाइंड कर सकते हैं, v3 फाइंड करना है तो फाइंड कर सकते हैं, v4 फाइंड करना है तो फाइंड कर सकते हैं। ओके, सो ऑल दिस थिंग्स यू कैन फाइंड फ्रॉम दिस formula। so please write this formula, I don't given this one। okay, नाउ वीडियो को पॉज करके वो फॉर्मूला लिख दीजिएगा। अब देखो नेक्स्ट वन,
अब हमें u2 की वैल्यू डालनी, u2 क्या है, ये वाला है ना, ये इसको u1 बोल दीजिएगा, और ये सेकंड वाला जो है इसको u2 बोल दीजिएगा। सो दैट इज -1 1 2 एंड 1। ओके, देन इनर प्रोडक्ट ऑफ u2 विथ v1। अब u2 की वैल्यू क्या है हमारे पास, ये वाली -1 1 2 1, एंड v1 की वैल्यू, v1 किसको एज्यूम किया है, देखो इसको, तो वही उठा लो इधर, 1 1 1 0। ओके, इनर प्रोडक्ट ऑफ दिस वेक्टर विद दिस अपॉन क्या है, नॉर्म ऑफ v1 स्क्वायर। तो नॉर्म v1 कितनी निकाली हमने, √3, उसका अगर स्क्वायर करेंगे तो क्या मिलेगा, 3 मिलेगा, इनटू v1, v1 क्या है, 1 1 1 0। ओके, सो अब ये कैलकुलेशन हमें करना है। सो फर्स्ट वाली जो टर्म है वो एज इट इज रहेंगी इधर, यस, ये वाली टर्म एज इट इज, दैट इज -1 1 2 1, देन माइनस, अब इन दोनों का इनर प्रोडक्ट, इन दोनों का क्या करेंगे, इनर प्रोडक्ट, दैट मीन्स दिस इज मल्टीप्लाइड टू दिस इज मल्टीप्लाइड टू दिस अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन। हमें क्या दी गई है, डेफिनेशन दी गई है, उस डेफिनेशन के अकॉर्डिंग हम इनर प्रोडक्ट लेंगे। दैट इज -1 into 1 1, 1 into 1 1, 2 into 1 1, sorry 2, and 1 into 0 0। So this is the thing upon 3 as it is, and this vector is again as it is। now इसके अगर एडिशन करेंगे तो हमें मिलेगा -2/3 into this vector। अब क्या करूंगा मैं, -1 इसको, ओके, देन अगेन 1 to this को, 1 2 to this and 1 to this। So -1 -2/3, and then 1 -2/3, then 2 -2/3, and 1 minus 0 guys। Okay, then so this v2 is equal to, ये फाइंड करूंगा, ये 3 इधर जाएगा, -3 -1 that is -5/3, then 3 -2 1/3, and 3 to the 6 -2 4/3, and that is 1। अब मैं क्या करूंगा, इसकी नॉर्म फाइंड करूंगा, नॉर्म ऑफ v2। ओके, नॉर्म ऑफ v2। सो ये क्या होती है, स्क्वायर रूट ऑफ इस -5/3 स्क्वायर प्लस 1/3 स्क्वायर प्लस 4/3 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर। so that is 25/9, 1/9, 16/9 प्लस 1। सो इन सब की अगर समेशन करूंगा तो 42/9 प्लस 1, एंड दैट इज 51/9 स्क्वायर रूट। दिस इज द नॉर्म ऑफ v2 गाइस। अब v3 वेक्टर है क्या हमारे पास, नहीं है, तो इधर हम स्टॉप कर देंगे। हमारे पास कौन कौन से वेक्टर है, u1 एंड u2 है, u3 वेक्टर है क्या, नहीं है, तो हम इधर ये ग्राम स्मिथ प्रोसेस स्टॉप कर देंगे। सो नाउ वी विल नॉर्मलाइज द वेक्टर्स v1 एंड v2 so that we will get the orthonormal vectors। so w1, अब नॉर्मलाइज को मैं क्या कहूंगा, w1 कहूंगा। तो w1 इज इक्वल टू v1 अपॉन नॉर्म ऑफ v1। तो v1 वेक्टर हमारे पास ये है, जो पहले अज्यूम किया था 1 1 1 0, एंड नॉर्म v1, उसकी नॉर्म क्या है, √3। सो हर एक वेक्टर को, हर एक एलिमेंट को √3 से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, 1/√3 से, 1/√3 1/√3 1/√3 एंड 0। w2, so w2 is nothing but v2 upon norm v2। so v2 वेक्टर हमारे पास अभी अभी फाइंड किया है, -5/3 1/3 4/3 एंड 1, उसको उसकी नॉर्म से डिवाइड करना है, दैट मीन्स अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 51/9 से डिवाइड करना है। सो गाइज ये देखो, ये स्क्वायर रूट में क्या है हमारे पास, 51/9 क्या है, 51/9 है, यस। तो ये 9 स्क्वायर रूट के बाहर अगर आया तो क्या होगा, 3 होगा। ओके, और ये जो न्यूमरेटर में है वो क्या रहेगा, ओनली 51 स्क्वायर रूट में, स्क्वायर रूट 51/3। तो देखो अब क्या होगा, -5/3, ये जो डिवाइड है ना, ऊपर जाएगा तो ये 9 का मल्टीप्लाई होगा, है ना, तो दैट इज -5 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 51। ओके, अपॉन 3 है इसमें। ओके, और इंटू क्या है, 3 भी है, ये डिवाइड का 5 का 3 वाइड, ये कैंसिल हो जाएगा, सेम ये भी 3 कैंसिल हो जाएगा। सो 1/√51, 4/√51, एंड ये जो अब 3 जो है ये ऊपर चला जाएगा, ये लास्ट केस में। ओके, तो ये बेसिक कैलकुलेशन से आपको बताने की जरूरत नहीं है। देन इट इज a 3/√51, and the vectors w1 and w2 forms an orthonormal basis of usual inner product in R4। ये w1 and w2 जो वेक्टर्स है वो क्या करते हैं गाइस, ऑर्थोनॉर्मल बेसिस फॉर्म करते हैं। अब कुछ बच्चों का ऐसा क्वेश्चन होगा, सर कैसे करते हैं, अगर आपको चेक करना है कैसे करते हैं तो ले लीजिए, w1 का इनर प्रोडक्ट लेना है इटसेल्फ। तो क्या मिलेगा आपको, देखो 1/√3 into 1/√3 क्या मिलेगा, 1/3 प्लस
1/√3 into 1/√3, 1/3, 1/3 plus 1/3, अगेन प्लस 1/3, 1/3, 1/3, 1/3, सबके एडिशन करोगे तो क्या मिलेगा आपको? 1 मिलेगा। सो फर्स्ट कंडीशन सेटिस्फाई हो गई। ओके, किसी भी वेक्टर का इनर प्रोडक्ट लेंगे इटसेल्फ तो हमें क्या मिलना चाहिए? 1 मिलना चाहिए। सेम आप इस W2 का भी ले सकते हो, 1 ही आएगा। लेकिन अगर हम इसका इनर प्रोडक्ट विथ इससे लेंगे, W1 का इनर प्रोडक्ट W2 से लेंगे तो हमें वो 0 आएगा। ओके, और ये आता है गाइस, ये आता है, इसलिए हम कह रहे हैं कि इट इज ऑर्थोनॉर्मल बेसिस एंड यही ग्राम स्मिथ प्रोसेस हमें कहती है। ओके, आई होप गाइज ऑल ऑफ यू अंडरस्टूड दिस मेथड। बी एंड सी एग्जाम्पल आप करोगे, अगेन एक्सरसाइज में बहुत सारे एग्जाम्पल थे। आई थिंक बेसिस दिया गया है आपको 1x एंड एक्स स्क्वायर, इट्स अ पॉलिनोमियल बेसिस, और आपको उसके ऑर्थोनॉर्मल बेसिस फाइंड करने हैं। ओके, सो वो भी इजी वाला एग्जाम्पल है। आई थिंक दैट इज 3 टाइप्स, ओके, 3 स्टेप्स मेथड। बट जो लास्ट वाली टेप है उसमें उसमें थोड़ा इनर प्रोडक्ट अलग से डिफाइन किया गया है, इंटीग्रेशन 0 to 1 या 40 इंटू जी ऑफ टी डी टी। सो आप वो कीजिएगा तो इंटरेस्टिंग रहेगा आपके लिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो गाइज। और इससे ये चैप्टर भी एंड हो रहा है अपना, थर्ड चैप्टर। नेक्स्ट वीडियो में हम फोर्थ वाला चैप्टर स्टार्ट करेंगे गाइज। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।